So the voice is now clear. Okay, good. So let's talk. Let's start our next lecture. Next slide. Sorry. So these are the applications of the Gibbs-free energy we already discussed. Now we will go to the next slide. So the properties of the Gibbs-free energy. So many of the equations we already discussed before. Okay, maybe we will answer little late. In order to discuss this thing, we will go to the answer session. So this is the general consideration. We already discussed G is equal to H minus Ts and dG is equal to dH minus dTs. It means that the T and S both are variable. Now in this situation, the T is constant. In this situation, the S is constant. Okay. We already discussed H is equal to E plus PV, so dPV. Okay. And the dPV is sometimes the pressure is constant, so PdV, and sometimes the volume is constant, so VdV. And the same equation we already discussed in the previous slides. बहुत कम आ रही है ऊंचा ओके ओके आप सही है अब मैंने वो कर दिया वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो शायद अब ठीक होगा ना माइक करीब है बिल्कुल करीब है माइक मेरे ख्याल में माइक बहुत करीब है ये हैंड्स फ्री है मेरे साथ तो इसमें तो मेरे ख्याल में माइक तो बहुत करीब है ओके अब क्लियर आ रही है आवाज मेरे ख्याल में अब क्लियर है ओके तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस you know that del E is equal to Q reversible minus PdV, okay, which is equal to TdS minus TdV. ये बात समझ में आ रही है? According to the first law of thermodynamics, D is equal to Q reversible minus PdV, and because the QR is equal to TdS, okay. What are you doing? Don't open your mic. Don't open your mic, okay? So the Q reversible is equal to TdS, and you just replace this Q reversible by TdS. Now replacing the value of the dE in equation number, the previous equation, maybe the equation number 4. Yes, this equation. So this is the equation number 4. Just replace the value of dE in the equation number 4. So you will get this. dG is equal to TdS minus PdV plus PdV, VdP, TdS, and so on. So the TdS will cancel with TdS, the PdV will cancel with PdV, and you will get VdP minus SdT. We already solved these equations, okay? Now if the temperature is constant, the pressure is constant, so you will get this equation. The change in Gibbs-free energy with respect to temperature at constant pressure will always be equal to decrease in entropy. And the second one, if you kept the temperature constant, then the dG by dt, and the change in free energy with respect to temperature at constant with respect to, sorry, this is a little bit wrong. I don't know why this is wrong. So this is dG over dP. This is not dG over dt. This is dG over dP. Okay. So this is dG over dP at constant temperature, which is equal to volume and which is constant. And we already solved some of the some of the equation. So this equation leads to another equation, which will tell nRT log of P2 by P1. Understand? So this equation is equal to nRT log of
P2 by P1. Yani del G is equal to nRT log of P2 by P1, and after given applying the standard conditions, you will get that G naught is equal to del G naught is equal to RT log of K, and that is very important equation from where we can find out the equilibrium constant. Understand? Okay, so now we'll go to the conclusion from the equation number 6. Okay, what is equation number 6? Equation number 6 is this: that the change in the Gibbs free energy with respect to temperature at constant pressure will always be equal to the decrease in entropy. The decrease in entropy. So this is the conclusion from equation number 6. Because S is greater than 0 for all substances, S is greater than 0 for all substances, so G decrease with temperature. G will decrease with temperature. When we increase the temperature, the value of G will decrease. And this decrease will be more in the case of gas as compared to liquid and solid. Because you know that for the gas, the S value is more. For the gas, the S value will be more. Gas is more, the S value for the gas is more positive as compared to the liquid and solid. So this decrease is very abrupt in the case of gas as compared to liquid and solid. So when we increase the temperature, the Gibbs free energy decrease because S is always greater than 0. It means that S is always positive for all substances. Okay, so now we are not considering here the isolated system. Okay, we are not considering the isolated system, so that is why the S value is always positive. Equation number 7. What is equation number 7? You know that? What is equation number 7? That del G over del P at constant temperature is equal to V. And you know that V is directly related to the pressure, so nRT log of P2 by P1. So from here we can get the relation between the Gibbs free energy and the pressure. So now, because V is always greater than 0 for all substances, so G always increase with pressure. And you see here that as we increase the pressure, the Gibbs free energy increase. And this increase is more pronounced. In the case of gas as compared to liquid and solid. In other case, when we are discussing about the entropy, then the entropy, the Gibbs free energy per gas will be abruptly changed with temperature because the temperature is always related with entropy. But in this situation, the pressure is related with the Gibbs free energy, and as we increase the pressure, the Gibbs free energy per the gas increases. Okay, while for the liquid and solid, there is very little effect of the pressure and the Gibbs free energy with increasing in pressure, because you already know that the pressure has very little effect on the properties of the liquid and solid as compared to gas. I hope you will understand this. Any question regarding this? Any question about these two slides? The first slide, where the Gibbs free energy is related with temperature, because we know that the entropy for all substances is always greater than 0. So when we increase the temperature, the Gibbs free energy decrease. Okay, and this decrease is more pronounced in the case of the gas as compared to liquid and solid. In the next slide, because you know that the volume for all substances is always greater than 0, it means it is positive.
So now the G always increase with pressure. And this increase is more pronounced in the case of gas as compared to solids and liquids. I hope you will understand. If you have any confusion in these two graphs, then you can ask. Any confusion? Any confusion in your mind? Clear? Okay, good. Okay, now we will proceed to the next slide. डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट ग्राफ समझा दें प्लीज ओके लास्ट ग्राफ और दोबारा सुन लो ओके ये पहला वाला आपके पास एक इक्वेशन था आपको मैं बार बार ये इक्वेशन जो था आपके पास कि भाई आपके पास जो डेल जी दोबारा सुनो डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस S. इसका मतलब है कि the rate of change in free energy with respect to temperature, if the pressure is constant, will be always equal to decrease in entropy. It means that we can relate the decrease in entropy of a system with temperature. So because the entropy for all substances is always greater than zero, so the G will decrease with temperature. And this decrease is more abrupt in the case of ये वॉइस प्रॉब्लम मेरे साथ ही या सब ओके तो दिस इस इक्वेशन का मतलब इसी में अब दूसरा इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि दिस इज द डेल जी विद रिस्पेक्ट टू pressure at constant temperature will be always equal to volume, and this is further the Gibbs free energy is related with the pressure by nRT log of P2 by P1. So now if we increase the pressure, the Gibbs free energy will increase. Okay, तो और ये जो आपके पास increase आ रहा है G के अंदर with pressure, that will be more pronounced in the case of gas as compared to liquid and solids, and because you know that we have very liquid और solid के अंदर हमारे पास क्या होता है कि pressure का इतना pronounced effect नहीं होता, इसी वजह से आपके पास जो है G जो है वो gas के लिए ज़्यादा increase करता है with pressure as compared to liquid and solid. Okay, let's go to the next slide. Okay, it is clear now. Okay, now in a very important equation that is called the Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation. Okay, and this is the variation of the Gibbs free energy with temperature. So just we can read this: the equilibrium composition of a system depend upon G. In order to discuss the effect of temperature and composition, we have to relate Gibbs free energy with temperature, and we already relate this by using equation number 6, that del G by del T at constant pressure is always equal to decrease in entropy. Okay, now this equation 6 explains the variation of G in terms of entropy, but because it is difficult to measure the entropy, okay, so there is a problem that because you know that for most of the systems, for most of the reactions, बहुत से reactions जो हमारे पास हैं, जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, वो सारे रिएक्शन हम ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं, और ओपन एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर का इफेक्ट होता है. क्या होता है? प्रेशर का इफेक्ट होता है. इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सी लेवल के ऊपर आपके पास एक प्रेशर होता है और दूसरे हिली एरियाज के ऊपर आपके पास
दूसरा प्रेशर होता है, यानी प्रेशर जो है वो वेरिएशन करता है विद एल्टीट्यूड। तो इसी वजह से हम हमेशा जो रिएक्शन करते हैं उसी को कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो पैरामीटर है एंथैल्पी का, दैट इज ऑलवेज केप्ट at constant pressure, and you already aware of it that we can define enthalpy that the total heat content at constant pressure is called enthalpy. तो ओपन सिस्टम के अंदर हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, ओके। एंट्रोपी को हम मेजर नहीं कर सकते ओपन सिस्टम के अंदर, तो इसलिए हम एच एस की जगह एच को मालूम कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी वेरी इजीली डिटरमिन कैलोरीमेट्रिकली, ओके। कैलोरीमीटर, यू नो कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर जो है एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए हम एंथैल्पी चेंज को मालूम कर सकते हैं। और आप लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर कहीं देखा भी होगा कि हमारे पास एक किस्म का बॉक्स होता है जिसके अंदर वैक्यूम होता है, और इस वैक्यूम के अंदर फिर एक और कंटेनर होता है, यानी कॉपर का कंटेनर होता है, और उस कंटेनर के अंदर फिर हम रख देते हैं क्या चीज़, थर्मामीटर रख देते हैं, उसके अंदर फिर हम स्टरर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कर लेते हैं, और इसके ज़रिए जो है हम एंथैल्पी को मालूम कर सकते हैं। तो ये कैलोरीमेट्रिकली, एक होता है कैलोरीमेट्रिकल, एक होता है कैलोरीमीटर। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंथैल्पी को लेंगे इंस्टेड ऑफ एंट्रोपी। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नो वॉइस, ओके, देयर इज नो वॉइस, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, नो साउंड। आ रही है, आयशा बेबी कह रहे हैं आ रही है, वॉइस तो है। I don't know what is the problem with this portal. I don't know any can say. Okay. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रहा है? यस यस यस। ओके, आप इसको इस तरह ना कि जब ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना, तो ये रिकॉर्डेड होता है, तो आप लोग जो है बाद में इसको वहां से सुन सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास है ना, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब हम क्या करेंगे, जी पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, क्या नाम है, टी के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो ये जो टी है ये नहीं है इसके अंदर, इस टी को हटा दे इसमें से, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, पूरे इक्वेशन को हमने डिवाइड किया किस चीज के ऊपर, टी, डिवाइड बाई, डिवाइडेड बाई टी, ओके। हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया टी के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया जी बाई टी, ये हो गया एच बाई टी, और ये बन गया एस, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ये अब बना इक्वेशन नंबर 7। नाउ इन द नेक्स्ट, ओके, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 7 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। असल मकसद हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा असल मकसद यहाँ पे ये है कि हम एस को रिप्लेस करना चाहते हैं, एस को रिप्लेस करना चाहते हैं, वी वांट टू रिप्लेस एस विद एच। इसका मकसद क्या है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ एस ऑफ एंट्रोपी ऑफ एस विद एच, ठीक है ना। तो एंट्रोपी को हम एस को रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ, एच के साथ, ओके। और हम क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं, हम क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं इसको, एस को एच के साथ क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं, कैन समवन टेल मी व्हाई वी वांट टू रिप्लेस एस विद एच? What is the reason? I already told you, but I want to know how much of
You understand? ओके, अभी तक तो आप लोग उसमें वॉइस में पढ़े हुए हैं। ओके, जिनको आवाज़ आ रही है ना वो हमें बता दें कि भाई ये रिप्लेसमेंट आप एस क्यों करना चाहते हैं, एस के साथ रिप्लेसमेंट आप एस एच के साथ क्यों करना चाहते हैं? अभी तक 30 लोग जो है वो लॉग इन है हमारे साथ, बाकी 16 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट। चलो, ये फिर आखिर में आ जाएंगे मेरे ख्याल में, तो ये तो गलत काम है। ओके, ज़रा बता देना, काइंडली जल्दी बता दे भाई, आप एस को क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं एच के साथ? आप में से कोई, अगर मेरा आज के दफ़ा भी ऑडियो ज्वाइन नहीं हुई, एरर कभी गए। आप कहाँ, सामिया इलियास, कहाँ से आप ऑनलाइन हैं? ओके, टू फाइंड आउट एंथैल्पी, यस गुड। सामिया इलियास, आप कहाँ से ऑनलाइन हैं, कौन से शहर से? जूम पे तो देखो इस तरह है कि आपकी अटेंडेंस जब काउंट नहीं होती तो मैं जूम पे क्लास, ओके मैं इस तरह कर सकता हूँ। मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये जो क्लास है उसको मतलब 1 घंटे के लिए, लेकिन ये क्लास तो कंप्लीट करना होगा ना, इसका तो ये है कि आप लोगों को इसका अटेंडेंस है, सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, तो लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये वाला क्लास जो है इंशाल्लाह जूम पे भी 1-1.5 घंटे का क्लास अगर हो सकता है तो वहाँ पे ले लूँगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा फिर बाद में, और जो लोग जो हैं अभी जिनको आवाज़ आ रही है तो वो रिप्लाई क्या करें, ठीक है ना। नहीं, सीआर को भेजने के साथ तो भेजने से तो अटेंड नहीं हो सकता ना, वो तो मुझसे वही मांग रहे थे कि भाई आपने ऑनलाइन जो क्लास ली है उसकी अटेंडेंस बता दें। ओके ठीक है, इस तरह है ना कि फिर आपके साथ मैं वो ये कर सकता हूँ कि भाई अ, कल या किसी भी टाइम आप मुझे बता दें, मैं फिर जूम पे ये वाला क्लास ले लूँगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी आ जाए अपनी क्लास की तरफ। अ, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर गैर हाजिर हैं, 15 स्टूडेंट गैर हाजिर हैं। ओके, तो क्या लॉस हो रहा है, हम क्या करें फिर? ओके, अब आ जाए इक्वेशन की तरफ। तो ये इक्वेशन नंबर 7 जो है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो आप अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डेल जी और टी विद डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/t डेल एच व डेल टी पी माइनस एच बाई टी स्क्वायर माइनस डेल एस व टी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो ये इक्वेशन कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे आया, ये आपके पास इक्वेशन था ना कि जी बाई टी इज इक्वल टू एच बाई टी, ये था मेरे ख्याल में, एच बाई टी और माइनस एस, ये इक्वेशन था आपके पास, ठीक है ना। तो ये इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बन जाएगा डी जी और टी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला ये पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये वाला जो आपके पास है इसमें दो टर्म्स हैं, एक एच है एक टी है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो इसमें आपके पास दो टर्म्स है ना, एक एच है एक वो है टी है, तो हम क्या करेंगे, पहले टी को कांस्टेंट बनाएंगे तो 1/t बना,
और h को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये वही प्रोडक्ट रूल है ना, ये वही प्रोडक्ट रूल है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना कि 1/t, ये आपके पास एक 1/t है और दूसरा आपके पास क्या है, h, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले 1/t को कांस्टेंट बना लें, 1/t कांस्टेंट, और डेल एच व डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसका एक पार्ट आया। फिर इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा कि आपके पास जो है वो h कांस्टेंट हो जाएगा, ये h कांस्टेंट हो जाएगा। और 1/t का डिफरेंशियल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ 1/t, बता सकता है कोई? 1/t का डिफरेंशियल क्या है, 1/t का डिफरेंशियल क्या है? इसका डिफरेंशियल होगा -1/t²। बात समझ में आ रहे हैं ना? 1/t का डिफरेंशियल क्या होगा, -1/t², -1/t²। ओके, ये तो समझ आ रहा है ना कि भाई 1/t का इस तरह होगा कि भाई आपके पास ये हो जाएगा t -1 एंड -1 और डिवाइडेड बाई -1। तो एज ए होल आपके पास ये बन जाएगा -1/t², ठीक है ना। तो -1/t² आपके पास ये बना, तो ये h ऑलरेडी कांस्टेंट है उसमें से, तो h/t² आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास h/t²। और ये जो s है ये आपके पास बन जाएगा डेल एस व डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एस व डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन आपके पास बना। अब आपके पास यहाँ पे ये जो डेल एच व डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू सी पी। ये आपके पास है डेल एच और डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ आ रहा है ना? ये आपके पास किसके बराबर है, सी पी। ये आपके पास बराबर है सी पी के बराबर। तो ये मैंने लिखा सी पी और 1/t, तो सी पी बाई टी माइनस h/t², h/t²। और ये जो टर्म है ये भी आपके पास बराबर आ जाता है सी पी बाई टी। लेकिन कैसे आता है, आप इसको कर लेकर, ये कैसे आएगा कोई बता सकता है? तो भाई डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल टू सी पी बाई टी। कोई बता सकता है आप में से, आप में से कोई बता सकता है? एनीवन among you can tell me that this is equal to आप में से कोई बता सकता है? हाँ जी, आप में से कोई बता सकता है कि ये कैसे आया, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दिस इज इक्वल टू सी पी बाई टी, ये कैसे आता है? मेरे ख्याल में आपको कुछ रीअरेंजमेंट करना होगा इसमें, लेकिन ये फिर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। सी पी को एच के इक्विलिब्रियम कर दिया, यस। तो आप ये वाला जो आपके पास है ना, ये वाला जो सी पी बाई टी आया हुआ है, यहाँ से आया डेल एस व डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये यहाँ से आया है। आप इसको सॉल्व कर ले खुद, ये क्यों आया है यहाँ से। तो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, ओके। तो सी पी बाई टी और सी पी बाई टी कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी पी बाई टी और सी पी बाई टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास क्या रह जाएगा, -h/2। ये माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे साइन गलत हो गया, ये माइनस है, तो -h/t²। तो क्या कहते हैं, गिब्स इक्वेशन। आगे बात समझ में। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको आपने करना है, वाई हाउ दिस इज इक्वल टू सी पी बाई टी, दिस इज फॉर यू, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब आप में से किसी ने पूछा था कि भाई
हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और फ्री गिब्स फ्री एनर्जी दोनों में क्या फर्क है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी? जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है और जो गिब्स फ्री एनर्जी है, दोनों में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? जी बराबर था H माइनस TS। जी किसके बराबर था? करना G बाई टी एम है। नहीं, वो तो ऑलरेडी ये तो इसके बराबर ही हो गया ना। ये तो डिफरेंशिएट का मतलब यही है कि अगर आप, यानी इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो G है ना, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट हो जाएगा ना। मतलब अगर आप इसको करने में तो G1 G2 या आपके पास T1 T2 इसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये जो आप चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू माइनस H बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप हम H की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, H की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, देन यू कैन फाइंड आउट द गिब्स फ्री एनर्जी एट दैट टेम्परेचर। तो उसी टेम्परेचर पे आप उसी की क्या कहते हैं उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे ये बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी? कोई बता सकता है? ओके, कौन सा क्वेश्चन आयशा ने किया था सर? लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट नहीं करना G बाई टी के साथ। देखो ये जो लेफ्ट साइड है आपका पास, ये वाला जो साइड है आपके पास, ये वाला जो साइड है, इसको, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन का, इसका मतलब ये है, यानी आपके पास ये क्या बन जाएगा? डेल जी का क्या मतलब होगा? G2 माइनस G1 ना। यानी आपके पास अगर यहाँ पे आ जाएगा ना, देखो इस तरह होगा, ये आपके पास इक्वेशन इस तरह बनेगा ना। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, G1 है फर्ज करें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? G1 कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस एच बाई, क्या कर रहा है आप, माइनस एच बाई T1 स्क्वायर। क्या बन जाएगा? T1 स्क्वायर ना। और G2 होगा तो फिर क्या होगा? वो बन जाएगा G2 इज इक्वल टू माइनस एच बाई T2 स्क्वायर। G2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एच बाई T2 स्क्वायर। और G1 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एच बाई T1 स्क्वायर। और फिर आप उसको करें G2 माइनस G1 को करेंगे, डेल G को निकालेंगे, तो फिर ये आप उसमें से कर ले, H को कॉमन कर ले, और वो आपके पास बन जाएगा 1 बाई T2 स्क्वायर माइनस 1 बाई T1 स्क्वायर। बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं यार? हाँ जी, आपको कुछ समझ आ गया? चलो इसको मैं ज़रा लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास है ये बन जाएगा G1, तो G1 आपके पास बराबर होगा माइनस H बाई T1 स्क्वायर, ठीक है। और G2 किसके बराबर हो जाएगा? G2 आपके पास बराबर हो जाएगा माइनस H बाई T2 स्क्वायर। ये इसका T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता इसको। तो नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा DG, ओके, DG। तो DG आपके पास बराबर आ जाएगा, सॉरी, DG आपके पास बराबर हो जाएगा G2 माइनस G1। इसमें आप वैल्यू पुट कर ले, तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप करेंगे तो क्या होगा? माइनस HT2 स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस, तो वो प्लस बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपने करना है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ सकता है कि इसके अंदर आप वो मालूम कर सकते हैं, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड जो आपके पास ये वाला जो साइड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं G को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो G2 आएगा आपके पास T2 के ऊपर,
और G1 आपके पास आ जाएगा किस चीज के ऊपर, T1 T2 और T1। अंडरस्टैंड, क्लियर है? इज इट क्लियर? Is it clear to you? ओके अब आप मुझे बताएं कि भाई एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, एक होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस है जरा बता दें आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी? तो गिब्स तो आपने समझ लिया, गिब्स फ्री एनर्जी। आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है? जनरली तो ये सिंपल है ना कि एच जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, और चेंज किसके बराबर होगा? डी जी विल बी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। यानी आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि डी और ये बन जाएगा टी एस, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि कभी आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, कभी आप एंट्रोपी को कांस्टेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्लोज सिस्टम हो तो वहाँ पे हम जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी से आपके पास क्या आता है? आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वहाँ से आता है वर्क, जो थर्मोडायनामिक वर्क है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉन पीवी वर्क जिसको कहते हैं, नॉन पीवी वर्क। तो आपके पास जो नॉन पीवी वर्क आता है वो किस पे आता है? कांस्टेंट नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे इस तरह है। और जो आपके पास हेल्महोल्ट्ज हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, तो वो किसके बराबर है? वो बराबर है ए विच इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। जो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है वो आपके पास बराबर होगा डी ई माइनस डी और टी एस, ठीक है ना। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में आपके पास जो नॉन पीवी वर्क होगा, नॉन पीवी वर्क, that will be at constant temperature and volume, you are right, and volume, ठीक है ना। तो आपके पास जो नॉन पीवी वर्क गिब्स फ्री एनर्जी इज डब्ल्यू आर टेम्परेचर एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी। ओके तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एंथैल्पी के साथ रिलेट करता है along with the एंट्रोपी, और जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट करता है एट क्या कहते हैं विद एंट्रोपी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम ज़्यादातर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं, और जो आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे लेते हैं, ठीक है ना। और दोनों की सूरतों के अंदर जो है आपके पास क्या बनता है, क्या नाम है, नॉन पीवी वर्क, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क? Again distortion, okay. Maybe there is some problem with the portal, I don't know. So from my side maybe there is no problem. Okay, again distortion. Ideal gas involved in PV work, but non-PV is not involved. Okay.
Okay. So this is the Gibbs Helmholtz equation, and you can easily derive this equation from the very important equation like the effect of the change in the Gibbs free energy with respect to temperature at constant pressure. That is very easy, and you can derive. This is a problem. This is an equation which can be asked in exams. Okay? So a very short question like the uh, derive the Gibbs-Helmholtz equation. So how to derive? You can understand it. Okay. So now I will ask some problem regarding the Gibbs-Helmholtz equation, and then we'll proceed to the next slide. So this is another important effect of the. I am going to see some problems. If there is any problem, then I will ask. Okay. Okay, calculate okay. So maybe we can ask, I don't know, is there any problem regarding Gibbs-Helmholtz equation? Okay, let's proceed to the next slide, and maybe we'll do this in the last time. So this is the third variation of the Gibbs free energy with pressure. So the variation of the Gibbs free energy with the temperature. So you can get the Gibbs-Helmholtz equation. So the Gibbs-Helmholtz equation. I already taken attendance. मैक्सिमम यूजर तो नहीं है बट 32 है ना. अब मैंने जो लिया था वो था 38. ठीक है मेरे ख्याल में दैट इज एनफ. ओके सो वेरिएशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी विद प्रेशर. और ये इक्वेशन भी हम जानते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी टी. ओके ये इक्वेशन आया था. तो ये इक्वेशन जो है इसमें अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो फिर आपके पास जो है ये टर्म खत्म हो जाता है. ठीक है ना. और जब आप उसको कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो फिर आपके पास ये टर्म खत्म हो जाता है. तो नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी विल बी जीरो. तो डी टी जीरो हो जाएगा और डी जी इज इक्वल टू वी डी पी. Okay. Now, if you integrate this equation from initial pressure to final pressure, then you will get this G at final pressure minus G at the initial pressure will be equal to VdP. Or in terms of molar quantities, the Gm, in terms of molar quantities, the final pressure will be equal to the Gm of the initial pressure plus Vm. What is Vm? The molar volume. And this will be from initial pressure to final pressure dP. Okay. And Gm of the final pressure will be equal to Gm of the initial pressure plus Vm Pf minus Pi. So this is very important equation. You can derive it in terms of moles. Okay. This is a graph between the volume and the pressure. This is the graph between the volume
and the pressure. Now at constant temperature, and the temperature is kept constant. Now at constant temperature, the difference in the Gibbs free energy of a solid or liquid between two pressure is equal to the rectangular area. ये जो area आपके पास आता है, this area is the rectangular area. So this total area explain the Gibbs free energy. So this area explain the Gibbs free energy for the liquid or solids. And the variation of the volume with pressure has been assumed to be negligible. और आपके पास जो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर previous slide, ये वाला slide कह रहे हैं, okay. Variation of the Gibbs, okay. So we know from this equation 5 that del G is equal to VdP minus SdT. Now if you kept the temperature constant, then the dG will be equal to VdP because it will cancel out. And if you integrate this equation, अगर आप इसको integrate करेंगे initial और final pressure के दरमियान, तो आपके पास जो G है final pressure पे minus G initial pressure पे वो बराबर होगा VdP के. और अगर आप इसको in terms of molar quantities लेंगे तो आपके पास GM जो होगा यानी Gibbs molar Gibbs free energy होगा. GM का क्या मतलब है? molar Gibbs free energy. और ये फाइनल प्रेशर विच विल इक्वल टू, ये इसको आप उस साइड पे ले जाए तो ये GM इनिशियल प्रेशर पे, और ये जो V आपके पास होगा वो क्या होगा? VM होगा. VM का क्या मतलब है? मोलर वॉल्यूम होगा. और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के दरमियान तो आपके पास बन जाएगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर. ठीक है ना? तो ये आपके पास बना GM फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू GM इनिशियल प्रेशर और प्लस मोलर वॉल्यूम और PF माइनस PI. ठीक है? तो आप किसी भी सिस्टम की क्या नाम है मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर आपको उसकी इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का पता हो और आपको उसकी मोलर वॉल्यूम का पता हो, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसकी जो मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है उसको मालूम कर सकते हैं. आप समझ आ गई बात? हाँ जी, आप क्लियर है? ये इज इट क्लियर टू यू? ओके. ये क्लियर है आयशा? भाई आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या मसला है? ओके गुड. अब इस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ. ओके, तो ये वॉल्यूम और प्रेशर का क्या है? ग्राफ्स. ये वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है और हमने यहाँ से मालूम करना है गिब्स फ्री एनर्जी. तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो दो डिफरेंट प्रेशर पे आएगा ना, और ये इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं DP के साथ. ठीक है, इनिशियल प्रेशर और ये फाइनल प्रेशर है. ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया आपके पास आता है दैट विल रिप्रेजेंट द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कोई प्रोनाउंस वेरिएशन नहीं आ रहा. ठीक है ना, आप जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कोई प्रोनाउंस वेरिएशन नहीं आ रहा. तो इसलिए हम इसकी जो वॉल्यूम है इसको क्या करते हैं? नेग्लेजिबल कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं, इसलिए कि आपके पास इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा. तो अंडर नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन द टर्म VmPF minus PI is very small. VmPF minus PI is very small, this term, because you know that the difference, the relation between the volume and the pressure, because the variation of the volume with pressure having no pronounced effect, so it is neglected and can be neglected, and hence Gibbs free energy for solid and liquids independent of the pressure. ठीक है, और जो आपके पास सॉलिड और लिक्विड होंगे उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा, यानी उसके ऊपर, उसके गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर जो है प्रेशर का कोई असर नहीं होगा. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनल जियोफिजिकल प्रॉब्लम्स. तो जियोफिजिकल प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे मतलब है कि आपके पास जो अर्थ का जो क्या कहते हैं उसको सेंटर है वहाँ पे चूंकि प्रेशर का ज़्यादा होता है और जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि उन केसेस के अंदर जो है आपके पास लिक्विड्स और सॉलिड्स की जो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी है वो प्रेशर डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन जो नॉर्मली हम जो हमारे पास होता है क्या कहते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, तो नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर आपके पास जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है.
अब आ गई समझ में बात। तो ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई आपके पास जो क्या कहते हैं, सारे अप्लाई हो गए, हो गया। ओके, तो आपके पास जो यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर का यानी वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर इज assumed to be negligible, ठीक है, because this term is very small for solid and liquid and the G will be independent of pressure, but exception is the geophysical problem. And geophysical problem क्या होता है कि आपके पास जो internal है या internal of the earth है, that has very high pressure from the external earth, and that is why the G is dependent upon pressure for the solid and liquid, but the gas is different from the liquid and solid. gas और gas का जो effect है, गैस फ्री एनर्जी पर गैस जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर नहीं होगा। जो आपके पास सॉलिड और लिक्विड होगा उसका जो कह रहे हैं कि वो प्रेशर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ओके, नाउ सपोज दैट फॉर अ सर्टेन फेज ट्रांजिशन ऑफ अ सॉलिड del V is equal to 1 centimeter cube per mole independent of pressure. What is del V? ट्रांजिशन है ना, del V ट्रांजिशन से क्या मतलब है? ये कोई एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है कि सपोज दैट फॉर सर्टेन फेज ट्रांजिशन ऑफ अ सॉलिड द del V transition is equal to 1 centimeter cube per mole and dependent on pressure. By how much does that Gibbs free energy of transition change when the pressure is increased from 1 bar, यानी 1 into 10 raised to power 5 pascal to 3 megabar, यानी 3 into 10 raised to power 11 pascal। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आपके पास चेंज, यस, ट्रांजिशन में चेंज का मतलब ये होता है कि आपके पास सॉलिड लिक्विड के अंदर कोई ट्रांजिशन हो रहा है या लिक्विड गैस के अंदर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब यही है, फेज ट्रांजिशन होता है ना, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है, या गैस से वापस लिक्विड में आता है, या लिक्विड से वापस सॉलिड में चला जाता है। तो ये सारे ट्रांजिशन है। तो सपोज आपके पास जो ट्रांजिशन आप सॉलिड है, ठीक है ना, फेज ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड जो है वो इसके बराबर है, जो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया। By how much does the Gibbs free energy of transition change when the pressure is increased from 1 bar to 3 megabar? तो 9 इक्वेशन जो हमने पहले किया था ना, वो पिछला इक्वेशन हमारे पास एक आया था, तो वो था कि GMPF फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस VF माइनस PI। हमने अभी ये जो इक्वेशन है इसको इसी तरह मॉडिफाई करना है। तो ये G1 के लिए आ गया, यहाँ पे लिखा है। अब हमने इसको लिखा है GM1, ये GM1 के लिए आया, और ये किसके लिए है, GM2 के लिए आया। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये आपके पास डेल्टा G ऑफ ट्रांजिशन है। डेल्टा G ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा, यानी 2 माइनस 1 और इज इक्वल टू डेल्टा V ऑफ ट्रांजिशन, ओके ना, सॉरी, डेल्टा G ऑफ ट्रांजिशन फॉर दिस PI के लिए। ये PI इनिशियल प्रेशर के लिए है, ये PF फाइनल प्रेशर के लिए है। और ये आपके पास वो इक्वेशन है कि जो यहाँ पे देखे ना VM2 और VM1, तो ये आपके पास बन जाएगा VM2 माइनस VM1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा V ऑफ ट्रांजिशन, और ये बाकी चीजें तो वही है, ठीक है ना, DP। ओके, नाउ द सोल्यूशन, ओके, ये बच जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये आपके पास ये जो टर्म है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, तो ये बन जाएगा डेल्टा ट्रांजिशन इज इक्वल टू दिस प्लस DV ट्रांजिशन एंड DP इज इक्वल टू दिस इज ट्रांजिशन PI प्लस ट्रांजिशन एंड PF माइनस PI। ये तो वही इक्वेशन है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे उसने लिखा PF माइनस PI, ये आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। तो ये जो टर्म है यानी डेल्टा V ऑफ ट्रांजिशन दिस इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये आपके पास क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, तो इसलिए ये टर्म जो आपके पास होगा दिस वेल कांस्टेंट, और बाकी इसके अंदर जो है आपके पास जो वैल्यूज है उसको आप पुट करते जाएं। तो इंसर्टिंग द डेटा एंड यूजिंग 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 जॉल क्यूब। ये जो 1 पास्कल मीटर क्यूब जो है वो आप इसके बराबर कर ले, 1 जॉल के बराबर कर ले। तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा G ऑफ ट्रांजिशन 3 मेगाबार आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आपके पास जो प्रेशर था वो क्या था, 3 मेगाबार था, और ये आपके पास कितना था, 1 बार था, ठीक है। और इस टर्म को तो आपने क्या किया, इस टर्म को आपने कांस्टेंट किया, इस टर्म को, और बाकी की जो है इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा
ये आपके पास जो टर्म था ये तो ऑलरेडी पढ़ा है, इंटू 3 इंटू 10⁻11 पास्कल, ये फाइनल आपके पास प्रेशर है, and this is the initial pressure. So this is the final pressure, this is the initial pressure, and this is the value for that. तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा ट्रांजिशन 1 बार प्लस 3 इंटू 10⁻2 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा है आपके पास, दिस इज द आंसर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ओके, अब ये सेल्फ टेस्ट जो है इसको आप कर सकते हैं, अगर कैलकुलेट द चेंज इन जीएम पर आइस, calculate the change in GM per ice at -10 degrees centigrade with density 917 kilogram per meter cube when the pressure is increased from 1 bar to 2 bar. Can you solve this according to the same equation already given? आपके पास इक्वेशन मौजूद है, इस इक्वेशन को आप देख लें, ये इक्वेशन है आपके पास, इसको कर ले शामिल, इसको करें और मुझे बता दें इसका आंसर। चलो स्टार्ट कर लें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो 18 स्टूडेंट जो है अभी एब्सेंट है मेरे पास, तो मैं अभी हाजिर लूंगा। ट्राई करें ना, अभी ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं ना, ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है ना, सारा इक्वेशन जो है इसी क्वेश्चन को यूज कर लें, ठीक है ना, और फिर इसमें से निकाल लें। ठीक है, बाद में कर लेंगे। ओके ओके, तो बाद में करना है तो ठीक है, बाद में कर लें, लेकिन इसका आंसर मुझे पे भेज दें। ठीक है, इसका आंसर मुझे भेज दें। अभी करना चाहते तो अभी कर ले, मैं तो बाद में करना चाहते तो बाद में कर ले, आपकी मर्जी है। हाँ, ग्रुप में सेट कर लें, बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चन अपने साथ नोट करते जाएं, मैं ये जो लेक्चर है इसको भी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप जरा देखते जाए कि कैलकुलेट द चेंज इन जीएम फॉर आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विद डेंसिटी, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, तो पहले आपने क्या करना है, उसका वॉल्यूम का पता लगाना है ना, तो वॉल्यूम का पता कैसे लगेगा, डेंसिटी से, जैसे कि आइस का तो आपको पता है मैस, ठीक है, तो मैस का पता वहाँ से लगा सकते हैं, और डेंसिटी ये है आपके पास, तो इसलिए वहाँ से आप क्या करेंगे, उसकी वॉल्यूम को मालूम करेंगे, और आपको इनिशियल प्रेशर दिया गया है 1 बार और आपको फाइनल प्रेशर दिया गया है 2 बार, तो बाकी सारा डेटा इसके अंदर पुट कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या नाम है, आंसर आ जाएगा। तो ये कर ले और मैंने मुझे फिर भेज दे, ठीक है ना। ओके the molar volume of a gas is large, so the G strongly depend on P, and hence volume is also not constant. The molar volume of a gas is not talk about the molar volume of a solid or liquid. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, the molar volume of gas. So the molar volume of a gas is large, so the G strongly depend upon P, and hence volume is also not constant. पहले हमने कहा था ना कि आपके पास जो गैस फ्री एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या हो रहा था, वो कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन वो किस चीज के लिए आ रहा था, सॉलिड और लिक्विड के लिए। लेकिन अगर आप उसको ले ले क्या नाम है, गैस को लेंगे, तो गैस के अंदर क्या होगा, गैस के अंदर आपके पास जो जी है वो स्ट्रांगली डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, प्रेशर के ऊपर करेगा, और इसलिए आपके पास जो वॉल्यूम होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए हम वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, RT बाई पी के साथ। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए लिक्विड और सॉलिड से, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए लिक्विड और सॉलिड से ना, तो आप कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, इस इक्वेशन, ठीक है ना। इसलिए कि सॉलिड और लिक्विड के लिए आपके पास जो जी है, डेल्टा जी है, जी ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, तो आपके पास ये जो टर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। गैस है तो गैस में क्या होता है कि जी जो होता है वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, इसलिए ये जो वी है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, और हम इस वी को रिप्लेस करेंगे RT बाई पी के साथ, RT बाई पी के साथ, एंड यू नो दैट इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to RT for 1 molar gas. Now for a gas, GM PF is equal to GM PI
प्लस आर टी और पी आई टू पी एफ 1/p dp विच इज इक्वल टू जी एम पी आई प्लस आर टी लॉग ऑफ पी एफ ओवर पी आई। ये तो आपको समझ आ रहा है ना। ये जो इंटीग्रल है आपके पास, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू log of पी एफ ओवर पी आई एंड आर टी। तो ये वाला इक्वेशन आप फिर यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, किसी भी गैस के लिए। दिस इक्वेशन शो दैट व्हेन पी इज इंक्रीज, ये इक्वेशन आपको शो करता है कि अगर पी को हम इंक्रीज करें 10 फोल्ड्स एट रूम टेम्परेचर, द मोलर फ्री एनर्जी गैस फ्री एनर्जी इंक्रीज बाय आर टी लॉग ऑफ 10। हेलो, अब आ गई आवाज? असल में पता नहीं दरमियान में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। ओके चलो दोबारा स्टार्ट लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ये कि दिस इक्वेशन शोज दैट व्हेन पी इज इंक्रीज 10 फोल्ड्स एट रूम टेम्परेचर, है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या है, 1 है, और आप उसको इंक्रीज कर ले 10 तक, ठीक है ना, 1 बार को 10 बार तक ले जाए, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, आर टी लॉग ऑफ 10 बन जाएगा ना। और ये कह रहा है कि आर टी लॉग ऑफ 10 रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, तो आपके पास ये जो होगा ये बराबर होगा 6 किलो जॉल पर मोल। तो अगर आप किसी भी गैस के प्रेशर को 1 से आप बढ़ा के ले जाए किस पे, 10 पे ले जाए, 1 बार से परस करें 10 पे ले जाए, तो आपके पास जो होगा वो जो आपके पास आता है उसकी वैल्यू यानी गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू वो बराबर होगी 6 किलो जॉल पर मोल। पी आई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, पी आई अगर किसके बराबर हो, पी स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 बार, समटाइम वी आर टेकिंग एट एज 1 एटमॉस्फेयर एज वेल, लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर अगर आपके पास 1 बार है, देन जी एम एट पी एफ विल बी इक्वल टू पी नाउ। तो आपके पास जो जी एम होगा वो पी एफ जो होगा उसके ऊपर वो आपके पास जी नॉट के बराबर होगा, ठीक है ना। ये जी एम एट पी एफ दिस इज इक्वल टू जी नॉट, ये जी नॉट के बराबर होगा। एंड द इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, जी एम पी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ पी ओवर पी नॉट, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपके पास फिर बनता है, और ये इक्वेशन तकरीबन हमने पहले भी एक डिराइव किया हुआ था एक इक्वेशन को, और जहां पे हमने लिखा था कि जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ पी, तो वहां से फिर हमने ऐसे इक्वेशन को क्या किया था, डिराइव किया, ठीक है। ओके, अब ये एक प्लॉट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वॉल्यूम और प्रेशर का क्या है, प्लॉट। गैस के लिए जो हमने प्लॉट दिया था आपको पता है कैसे प्लॉट था गैस के लिए, सॉरी लिक्विड और सॉलिड के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए वो प्लॉट कैसे था आपको पता है ना। लिक्विड और सॉलिड के लिए जो प्लॉट था उस पर तो मैं आगे दोबारा नहीं जा सकता, लेकिन वो तकरीबन इसी तरह प्लॉट था ना। मैं आपको दोबारा यहाँ पे वैसे रफली वो बता सकता हूँ कि ये अगर आप वॉल्यूम को प्रेशर के साथ क्या करें, प्लॉट कर लें, तो मिसाल के तौर पे आपके पास इनिशियल प्रेशर आता है, ये आपके पास फाइनल प्रेशर आता है, तो आपके पास एक इस किस्म का क्या बनता था, रेक्टेंगल बनता था। इस किस्म का क्या बनता था, रेक्टेंगल का बनता था। और इसका मतलब ये होता था कि भाई आपके पास जो गैस फ्री एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, किसके लिए था, सॉलिड और लिक्विड के लिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जरा देख ले, अगर आपके पास प्रेशर क्या है, कम है,
तो वॉल्यूम ज्यादा होंगे ना। और बिल्कुल क्लियर है आपको आइडियल क्या बॉयल्स लॉ से आपको क्लियर है कि भाई आपके पास जो प्रेशर होगा इनिशियल प्रेशर पे आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, और फाइनल प्रेशर पे आपके पास जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर ए परफेक्ट गैस बिटवीन टू प्रेशर इज इक्वल टू द एरिया शोन बिलो द परफेक्ट गैस आइसोथर्म। तो ये जो आपके पास एरिया है, this area will gives you the Gibbs free energy, the value of the Gibbs, the change in Gibbs free energy। ये जो एरिया है आपको, ये आपको बताएगा the change in Gibbs free energy। तो ये किस कंडीशन में होता है कि जब आपके पास गैस है, तो ये किसके लिए है, गैस के लिए। ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड्स के लिए आपके पास फिर यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा, बिकॉज द गिब्स फ्री एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, क्लियर है ये, इज इट क्लियर टू यू? ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, who is present now? I want to see who is present now. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay. So only 12 students are present, or showing 27. Okay, it means that you are just opening your you make yourself online, and physically you are doing something else. That is very, very strange. Okay, is Shamsa, is Shama Saifullah is present? Shama Saifullah is present? Shama Saifullah is present? No. Okay. No. Yeah, but in list of 29, I see she is present. Okay, but maybe physically she is not present with us. That is very, very, this is not good. Okay. Let's see. Okay, Saima or Kainat, login issue. Okay, so okay. तो कुछ की आवाज़ का बात इशू है, शायद भी उनको आवाज़ नहीं आ रही है। क्या?
Okay. Oh, okay. So maybe very good, Aisha. Very good. Very good. Aisha, you just see the lecture slide number 17. So this slide is for the gas. So now the relation between the volume and the pressure, and you see that as we increase the pressure, the volume decrease, and how we will find the change in the Gibbs free energy. So the change in the Gibbs free energy will be always equal to the area under the curve, okay, between the pressure and the volume. So this area under the curve is always equal to the change in the Gibbs free energy, okay. While for the solid and liquid, because you know that the Gibbs free energy is independent of the pressure, so there will be no. Uh, okay, no problem. I will, Samia, I will maybe I will take a class for you people on Zoom, the same class. I will repeat the same class for you on Zoom. Maybe I will discuss with you the timing, which time is suitable for you. So I will then discuss the same, and the same lecture will be taken on Zoom. Okay. So this is the graph which explains the relation between the volume and the pressure and the area under the curve. Well, it gives us about the change in the Gibbs free energy. Okay. This is a problem. Maybe it is very easy problem, and I hope you will solve this problem here. So the problem is given as calculate the standard state free energy of the formation of H2O2 from H2 and O2 given the following value, because you know that the Gibbs free energy of formation for the free element is always equal to 0. So this for H2 is equal to 0, for O2 is equal to 0, and for H2O2 it is equal to minus 120.4 kilojoule per mole. So solve this problem, okay? Hurry up. Solve this problem, and you know the reaction is given as H2 plus O2, H2 plus O2 will gives us H2O2. Okay? Can you solve this? Hurry up. To solve this problem, how you can solve this problem? The delta G of formation will be equal to the summation of the delta G of the product minus the summation of the delta G of reactant. So the reaction, the equation will be given like delta G delta of formation, okay? So delta G of formation of the reaction will be equal to summation of delta G product, okay? Minus summation delta G of react. So you just give me the answer. What is the answer of this question? Are you here? Have you are seeing this problem? To solve it and give me the answer. It is very easy. What is the possible answer for this?
Okay, just share with me the answer. Okay, so just give me the answer of this. Meeting time is remaining 8 minutes. Okay. Okay. Class will be end maybe at in 8 minutes. 8 minutes. आपने शुरू कब किया है समिया? अभी भी एंड करना चाहती है. Okay, चलो. -120.4. Very good, Aisha. Very good, Fatima. Very good. Good. So the answer is because you know that -120.4 minus 0 will be equal to -120. Okay. Yes, question में answer है ना? Yes. So this is the maybe I will talk with you about the second assignment. आपने सेकंड असाइनमेंट के लिए अभी असाइनमेंट होगा, इसका आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है. ओके, तो एक असाइनमेंट हो गया पाकीज़ा. ओके, आई विल डू. सो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक असाइनमेंट जो बनाना है उसका एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाना है और आपने प्रेजेंटेशन बनाना है और उस प्रेजेंटेशन को फिर आपने 5 मिनट की वीडियो बनानी है और मुझे फिर आपने भेजना है. तो आपने प्रेजेंटेशन की वीडियो बनानी है और फिर मुझे आपने वो वीडियो भेजनी है ताकि मैं उसको चेक करूं और उसकी बुनियाद पे आपको क्या करूं, वो दे दूँ, मार्क्स दे दूँ. ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा इशू आ गया था. जो लेक्चर हमारे पास होंगे उसमें फिर हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को. ठीक है.